Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the chapter the Cold War era, and under this chapter we were discussing the non-aligned movement, and under this non-aligned movement we have discussed about how this movement started, or we can say what was the situation in which this movement started. We have seen that after the Second World War, two superpowers emerged, and with this emergence of two superpowers, there started Cold War between these two superpowers, and the world started to be divided into two groups, that is the Soviet bloc and the US bloc. And then we have also discussed about there were many countries of Asia, Africa and Latin America which got independence after the Second World War, and it was a kind of situation among in front of these newly independent countries. What should they do? So what happened that instead of joining any of the two blocs, these newly independent countries have started a new movement under the leadership of Pandit Nehru, Joseph Tito and Abdul Nasir, who were the leaders of India, Yugoslavia and Egypt respectively. So this movement was non-aligned movement, that is they were not there to join any of the groups, to maintain equal distance from both the groups, and not to be with any of the groups, any of the blocs, any of the alliances. That was a non-aligned movement. So thus started the non-aligned movement. Its first summit held in 1961 in Belgrade in Yugoslavia, and then we have also seen what is non-alignment. So in order to understand what is non-alignment, we understood what is neutrality and what is isolationism, and we have come to conclusion that non-aligned movement is not isolationism or neutrality. It is very much involvement in the world politics, but the involvement is from in a different way. The different way is that not be a part of any of the alliance system, to remain away from the alliance system, and to be actively participate, and to participate actively in the international politics. And then we have discussed about the new international economic order. This is an idea which is presented by UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development. This UNCTAD has presented a report in the year 1972, and in this report there was so many points how to start a new international economic order, what should be the main points of the new international economic order. And in the previous class we have discussed about all these things, that the resources of the developed countries should be in the control of the developing countries only. The resources of developing countries, or the LDCs, the least developed countries, should not be used by the developed countries. What was happening during the Cold War era, we have discussed how the developed countries were using the resources of the developing countries, all the LDCs, for their own benefit. But this should not be continued. There should be end to this practice. The resources of the LDCs or the developing countries should be used by them only. Then we have also discussed the market. The market of the developing countries are accessible to the the market of the developing countries are accessible to the developed countries. In the similar manner, the market of the developed countries should also be accessible to the developing countries. But this is not the case, है ना? तो ये टू वे होना चाहिए. अगर आप हमारे मार्केट में आ सकते हैं, हमारे मार्केट में अपने गुड्स को यू कैन सेल, तो हमें भी ये अधिकार होना चाहिए कि हम मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, दे कैन ऑल्सो सेल देयर गुड्स इन द मार्केट्स ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज. एंड देन नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एट लोअर कॉस्ट, बिकॉज टेक्नोलॉजिकल गैप है, तो इस गैप को फिल करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हो वो इस तरह से हो जिससे कि किसी भी तरह का रुकावट ना आने पाए.
सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर सही से होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा था वो ये था कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस में डेवलप्ड कंट्रीज का तो से होता है, बट डेवलपिंग कंट्रीज हैव नो से ऑन दीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो दैट शुड नॉट बी देयर। उनका भी अपना कमांड होना चाहिए, उनकी भी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। ये चेंजेस हम चाहते हैं। और इस तरह से जब 1972 में ये रिपोर्ट आई तो उस समय व्हाट वी फाइंड दैट दिस नॉन अलाइन मूवमेंट स्टार्टेड टू वर्क एज एन इंटरनेशनल इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप, है ना। बट धीरे धीरे क्या हुआ, 1980s के जब डिकेड में हम पहुंचते हैं तो ये चीज़ें बहुत काम नहीं कर पाती हैं। ये जो इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप के तरह से काम करना स्टार्ट किया था नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, वो बहुत दिनों तक सर्वाइव उस तरह से नहीं कर पाता है उस रोल में। देयर इज रीज़न बिहाइंड इट। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? द रीज़न इज़ कि जो कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़, उनके बीच में यूनिटी नहीं हो पाती है। बिकॉज जो कमज़ोर होते हैं उनकी यूनिटी को तोड़ना बहुत आसान होता है, और जो मजबूत होते हैं उनकी यूनिटी को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। बिकॉज डेवलप्ड कंट्रीज आर वेरी मच पावरफुल पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली, इन ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ दे आर वेरी मच पावरफुल, एंड द डेवलपिंग कंट्रीज आर वेरी लेस पावरफुल. And most important aspect is economic aspect. Economically they are very backward. They are always in need of money. तो इस तरह में जब उनको अगर मॉनेटरी सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट किसी भी डेवलप्ड कंट्री से मिल जाता है तो फिर वो क्या करते हैं कि अपनी यूनिटी उनकी ख़त्म हो गई. और ये दैट वाज द रीज़न कि 1980s में ये जो इकोनॉमिक इंटरनेशनल इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप की तरह से काम करना नॉन अलाइन्ड मूवमेंट ने जो स्टार्ट कर दिया था वो ख़त्म हो जाता है. वो ज़्यादा दिनों तक उस रोल को नहीं फुलफिल कर पाता है और ये एंड हो जाता है. ठीक है. तो इसमें अब हम लोग देखेंगे कि इंडिया का क्या रोल रहा है. इंडिया का टू फोल्ड रोल रहा है. इंडिया एक तो ये चाहती है कि कोल्ड वॉर जो चल रहा है वो एस्केलेट ना हो. उस समय यही चाहती थी जब तक कोल्ड वॉर था, और दोनों ही ग्रुप से वो अपने डिस्टेंस को मेंटेन करके चलती थी. और इसकी ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉलिसी थी कि जो भी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की कंट्रीज आज़ाद हो रहे हैं उन कंट्रीज़ में कौन सी पॉलिसी अपनाई जाए. जो भी कंट्री आज़ाद हो रहे हैं वो सब कंट्री जो है वो नॉन अलाइन्ड मूवमेंट को ही ज्वाइन करें, ना कि ईस्टर्न या वेस्टर्न अलायंस को. क्योंकि अगर इफ़ द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका स्टार्ट्स टू ज्वाइन alliances, then the NAM will become meaningless, useless. So in order to make NAM powerful, it was very much important that whichever country is becoming independent, they must join NAM, and India was making effort for that. India's role in the non-aligned movement was very much constructive, and not only constructive but active also. Because it was active, that is why it was constructive. If it was not active, then it could not have been constructive, है ना. तो इंडिया का जो रोल है नॉन अलाइन्ड मूवमेंट में वो कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने में रहा है. जैसे कि हमने पहले भी देखा था ड्यूरिंग द कोरियन क्राइसिस, इंडिया प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिड्यूसिंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कोरियाज. And in this way, India played a very prominent role in reducing the threat to the international peace and security. So it's a active participation, है ना. It's an active participation on the part of India, and not only it's an active participation, but it's a positive, because we are trying to reduce the threat of war. We are trying to reduce the insecurity, global insecurity. So now we will see that India also tries ki whichever regional organizations are there or international organizations are there which are not a part of alliance system, they must play a very active role in the international politics, because alliance systems are very active. They are very much active because both the alliance system, both the alliance Eastern Alliance and Western Alliance, both of them are working against each other, and they are very much active. They are always trying to increase the number of the countries under their influence, है ना. So they are very active.
So in order to balance, what is required कि the other organizations, the other regional and international organizations must behave, must act in a very active manner, and India has always tried for it कि जो भी international organizations है, regional organizations है, वो सभी actively participate करें. So we have discussed up to this, and now we will move to a new सब टॉपिक अंडर दिस नॉन अलाइंड मूवमेंट. इसके अंदर हम एक नए सब टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे. सो नाउ व्हाट वी फाइंड दैट इट इज सेड दैट नॉन अलाइंड मूवमेंट was actually serving the real interest of India. Okay, non-aligned movement was actually serving the real interest of India. So what we find that it seems that non-aligned movement is a very noble cause. It is there to reduce the threat of the Third World War. It is there to reduce the intensity of the Cold War. It is there to ensure world peace and security. So these are just we can say it seems to be like that, but in reality what was happening, that this NAM was serving the real interest of India and many other countries who adopted this non-aligned movement, but here we are concerned only with our own country. So why this kind of allegation is there कि it was only to serve the interest of the country, and it has nothing, but it was not that much connected with the world peace and security and all. It is said because non-alignment allowed India to take international decisions and stances that served its interest rather than the interest of the superpowers. As I told you in the beginning itself, the most important reason for adopting, or we can say for starting of this non-aligned movement was a desire to follow an independent foreign policy. Foreign policy cannot be independent of a country which is an ally of a alliance system. If a country is an ally of any of the alliance system like Western Alliance or Eastern Alliance, then in that situation the country will be compelled to follow the foreign policy according to the interest of their respective superpowers, not to follow the foreign policy according to the interest of our own country. And that is the reason India adopted this non-aligned movement, because we wanted to have our own foreign policy. We wanted to have such foreign policy which served the interest of our own country. The purpose of the foreign policy is not to serve the interest of the any other country. ये होना भी नहीं चाहिए. तो ये अगर कहा जा रहा है तो ये सच है. Yes, it was there to serve the real interest of the country. Then the second point is in this regard that India, many times it happened that India balanced one superpower against the other. Because India is not a part of any of the alliance system, India is not a part of, India is not with any of the superpowers, so it was
in a condition where it can balance one superpower against another. If India felt ignored, or if India felt that it is being pressurized by any one of the superpowers, then in that situation it could tilt towards the other, है ना. हमारे पास सामने दोनों है. अगर एक हमें इग्नोर कर रहा है या फिर एक हम पे अनड्यू प्रेशर डाल रहा है किसी काम के लिए, तो हम दूसरे की तरफ चले जाएंगे, है ना. ये तो हमारे हाथ में है, बिकॉज वी हैव नॉट अडॉप्टेड एनी ऑफ द अलायंस सिस्टम. हमने तो दोनों से बराबर दूरी रखी है. अगर कोई भी हमें परेशान करेगा, एक पावर सुपर पावर अगर हमें परेशान करेगा, तो हम दूसरे सुपर पावर्स के पास चले जाएंगे. तो ये बात सुपर पावर्स भी बहुत अच्छे से जानते थे कि इंडिया को सिर्फ हम मतलब अगर हम किसी अलायंस को ज्वाइन कर लेते, सपोज हम वेस्टर्न अलायंस को ज्वाइन कर लेते, तो फिर तो हम यूएस के क्लच में आ गए ना. फिर यूएस हमारे लिए बहुत कुछ नहीं सोचने जा रहा है. लेकिन हमने न तो यूएस के अलायंस को ज्वाइन किया ना यूएसएसआर के अलायंस को ज्वाइन किया, तो हम किसी के भी क्लच में नहीं. दोनों के मन में ये होगा कि हम इंडिया के लिए, इंडिया के हिसाब से कुछ करें ताकि इंडिया हमारे साथ हो, क्योंकि इंडिया इज अ बिग पावर, है ना. तो इस तरह की चीजें जो हुई, इसमें हमने अपने इंटरेस्ट को सर्व किया है. कोई भी अलायंस, चाहे वो ईस्टर्न अलायंस हो, चाहे वो वेस्टर्न अलायंस हो, कोई भी अलायंस सिस्टम हमें टेक फॉर ग्रांट नहीं कर सकता. हमें ऐसा नहीं कि हाँ इंडिया है तो कोई बात नहीं. वो हमें इम्पोर्टेंस देने के लिए दे आर कंपेल्ड. दिस इज द थिंग that the non-aligned movement was there to serve the real interest of India, and that became the reason for criticism of India's non-alignment policy. इंडिया ने जो नन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट किया, नन अलाइनमेंट की पॉलिसी अडॉप्ट की, इसको क्रिटिसाइज भी इसी बेसिस पे किया गया. तो जो पहला बेसिस था इंडिया की क्रिटिसिज्म का, वो ये था कि इंडिया का जो नन अलाइनमेंट है वो अनप्रिंसिपल्ड है. देयर इज लैक ऑफ प्रिंसिपल. आप कह रहे हैं कि आप किसी भी अलायंस सिस्टम से नहीं जुड़े हुए, ना तो ईस्टर्न अलायंस से ना वेस्टर्न अलायंस से. तो इस तरह में आप क्यों नहीं जुड़े हुए हैं? क्योंकि आप अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली काम करना चाहते हैं. बट एक्चुअली व्हाट वाज हैपनिंग दैट देयर वर मेनी क्रूशियल इंटरनेशनल इश्यूज, एंड ऑन दोज क्रूशियल इंटरनेशनल इश्यूज यू आर नॉट टेकिंग एनी फर्म स्टैंड. फर्म स्टैंड आप नहीं ले रहे हो ना, because you are not with any of the alliance system, so you are not taking any firm stand on any crucial international issues, so you are unprincipled, you are opportunist. जब जैसी opportunity होगी तब आप वैसा काम करेंगे. अगर आपके नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली आप चाहेंगे तो किसी भी एक्ट को क्रिटिसाइज करेंगे, चाहेंगे तो किसी भी एक्ट पर ध्यान नहीं देंगे, है ना. तो ये चीजें हुई थी, ऐसे सिचुएशंस आए थे, हमने इसको डिस्कस भी किया है. तो ये चीज़ें हुई थी, लेकिन इस कारण से ही इसको अनप्रिंसिपल्ड कहा गया और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज भी किया गया. ठीक है. अब हम सेकंड जो क्रिटिसिज्म की जाती है उस पर हम ध्यान देंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ये कहा गया कि इंडिया जो है वो कहने के लिए तो इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को अडॉप्ट किया, जिसका मतलब यही होता है कि किसी भी अलायंस सिस्टम से वो नहीं जुड़ेगा. बट इंडिया वॉज टिल्टेड टूवर्ड्स यूएसएसआर. इट इज़ एन एलिगेशन एंड देयर इज प्रूफ ऑल्सो, क्योंकि इंडिया ने 1971 के अगस्त में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप किया यूएसएसआर के साथ फॉर 20 ईयर्स. ये जो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप इंडिया ने यूएसएसआर के साथ किया, इसके कारण इंडिया की नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी है इसकी क्रिटिसिज्म की जाती है. बिकॉज ऐसा माना जाता है कि आपने एक तरह से यू हैव ज्वाइंड द सोवियत सिस्टम, यू हैव ज्वाइंड द सोवियत अलायंस, नॉट सिस्टम, यू हैव ज्वाइंड द सोवियत ब्लॉक, बिकॉज यू हैव डन ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप फॉर 20 ईयर्स विथ द यूएसएसआर. ठीक है. तो इस कारण से क्रिटिसाइज किया जाता है. बट हियर वी नीड टू डिफेंड द स्टैंड ऑफ आवर कंट्री. व्हाई वी वेंट फॉर दिस ट्रीटी? व्हाट वाज द रीजन
for India to go for this treaty. There was such situation, and the situation, because of that situation, India did this treaty. Actually, we have a very bad relationship with Pakistan. In October 1947, there was a war between the two countries, and at that time only a large portion of our country went in the control of Pakistan, which is now called Pak-occupied Kashmir. Then again in the year 1965 there was war with Pakistan on the same issue. Then before 1965, in 1962 we have war with China, border issue. Because of border issue, China was claiming some parts of India like नेफा के कुछ parts और इधर जम्मू कश्मीर के कुछ पार्ट जो अक्सई चीन का पार्ट है उसको वो क्लेम कर रहा था, और इसी पर हम पे अटैक हुआ 62 के अक्टूबर में, और उस जो वॉर हुआ इंडिया और चाइना का, उस वॉर में हमारी हार होती है, डिफीट होती है। तो अगर हम 1965 तक की कंडीशन को देखें तो द कंडीशन वाज वेरी बैड। पाकिस्तान के साथ 2 वॉर हो चुके थे, चाइना के साथ 1 वॉर हो चुका था। नॉट ओनली दिस, अगर हम 1970s के लास्ट में आते हैं तो क्या देखते हैं कि एक नई सिचुएशन आ रही थी जिसमें कि अमेरिका और चाइना के बीच का रिलेशन इम्प्रूव कर रहा था, क्योंकि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री था, PRC, जिसका फॉर्मेशन 1949 में हुआ था। अमेरिका ने उसको रिकॉग्निशन नहीं दिया था, लेकिन 1960s के लास्ट होते होते इन दोनों के बीच के रिलेशंस इम्प्रूव करने स्टार्ट होते हैं। और एक तरफ तो चाइना और पाकिस्तान का तो रिलेशन बहुत ज़्यादा बना हुआ था, दोनों आपस में जो दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती थी इंडिया के अगेंस्ट, है ना। तो चाइना और पाकिस्तान तो जुड़े ही हुए थे। अब इसमें एक नई एंट्री हो रही थी अमेरिका की। पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का अलाई है ना, अलाई था। तो पाकिस्तान तो अमेरिका के साथ था ही, पाकिस्तान चाइना के साथ भी था, पाकिस्तान और चाइना दोनों इंडिया के अगेंस्ट थे। तो अब ऐसे में क्या हुआ कि चाइना और अमेरिका के बीच के रिलेशन भी इम्प्रूव होने स्टार्ट हो जाते हैं। अमेरिका जो है वो चाइना को रिकॉग्नाइज भी कर देता है। एंड नॉट ओनली दिस, हेनरी किसिंगर जो कि प्रेसिडेंट निक्सन के सेक्रेटरी थे, वो उनका एक सीक्रेट विजिट होता है टू चाइना वाया पाकिस्तान। ये सीक्रेट विजिट तो जो था ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा अलार्मिंग बेल था, क्योंकि ये अब समझ में आने लगा कि ये 3 कंट्रीज का एक एक्सेस बन रहा है, US, चाइना, पाकिस्तान। चाइना के साथ इंडिया का 1 वॉर हो चुका है, पाकिस्तान के साथ 2 वॉर हो चुका है, चाइना और पाकिस्तान आपस में अच्छी दोस्ती है, और अब उसमें US भी इन्वॉल्व होता जा रहा है। तो एक तरफ तो ये सिचुएशन हो रही थी, दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में भी प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो गए थे। वेस्ट पाकिस्तान जो था वो और ईस्ट पाकिस्तान, इन दोनों के बीच में जो मेजर डिफरेंस था वो लैंग्वेज का था और कल्चर का था। दोनों के लैंग्वेज, जैसे वेस्ट पाकिस्तान में उर्दू बोला जाता था, ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली। देन कल्चर भी कम्प्लीटली डिफरेंट था दोनों कंट्रीज का, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि वेस्ट पाकिस्तान जो है वो क्या करना स्टार्ट करता है, ईस्ट पाकिस्तान को अपनी कॉलोनी की तरह यूज करना स्टार्ट कर देता है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉलोनी? कॉलोनी का मतलब ये हो रहा है कि वहाँ के रिसोर्सेज को वेस्ट पाकिस्तान के डेवलपमेंट के लिए यूज किया जा रहा है, और वहाँ की कल्चर और वहाँ की लैंग्वेज को पूरी तरह से क्रश किया जाता था, सप्रेस किया जाता था। तो ये सिचुएशन प्रिवेल कर रही थी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में। तो ईस्ट पाकिस्तान में धीरे धीरे people started protesting against this kind of domination of West Pakistan, ठीक है। वेस्ट पाकिस्तान का जो इस तरह का डोमिनेशन था उसके अगेंस्ट ये आवाज़ उठाना स्टार्ट कर देते हैं। दे स्टार्ट टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स। इसी में अवामी लीग बनती है, उनके नेता होते हैं शेख मुजीबुर रहमान,
बहुत प्रोटेस्ट होता है। उनकी डिमांड होती है कि हमें जो ईस्ट पाकिस्तान है उसको ऑटोनॉमी मिले, है ना, और वो एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात करते हैं जहाँ पर कि फेडरलिज्म, ट्रूली फेडरलिज्म हो, जहाँ पर कि उनको ऑटोनॉमी दिया जाए ईस्टर्न पाकिस्तान को। और इसी के लिए इलेक्शंस होते हैं कि नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी जिसमें कि जो भी चेंजेस लाना हो कॉन्स्टिट्यूशन में वो चेंजेस लाया जाएगा। तो इसके लिए जब इलेक्शंस होते हैं तो उस इलेक्शन का जो रिजल्ट आता है उसमें अवामी लीग जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स पे जीत जाती है। अब जब मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स पे अवामी लीग जो कि ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी थी जीत जाती है, तो जो वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स थे वो इस इलेक्शन के रिजल्ट को मानने से ही इनकार कर देते हैं। ठीक है, अब उनका क्या कहना है कि ये गलत है, इसको हम नहीं मानेंगे। और जब वो उन्होंने उसके रिजल्ट को मानने से इनकार कर दिया तो क्या हुआ, तो फिर जो स्टूडेंट्स थे, जो पॉलिटिकल पार्टी अवामी लीग थी उसके लीडर्स थे, उन सब का जो प्रोटेस्ट था वो बहुत बढ़ जाता है। दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग ऑन अ लार्ज स्केल। और जब वो प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा करने स्टार्ट करते हैं तो फिर उधर से सप्रेशन स्टार्ट होता है। किधर से, जो वेस्ट पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी वो सप्रेस करना स्टार्ट करती है। बहुत ज़्यादा सप्रेशन होता है, क्रशिंग होता है, वायलेंस होता है, बहुत सारे लोगों की जान जाने लगती है। तो इस तरह की सिचुएशन में जो किलिंग्स हो रहे हैं, जो राइट्स हो रहे हैं, उसके कारण क्या होता है कि ईस्ट पाकिस्तान से बहुत सारे जो लोग होते हैं वो माइग्रेट होके इंडिया आने लगते हैं। जो इंडिया में वेस्ट बंगाल है, ये सभी नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उसमें वो माइग्रेट होके आने लगते हैं। अब इंडिया के लिए एक तरफ तो वो चाइना, पाकिस्तान और अमेरिका की एक्सेस तो बनी रही थी, दूसरी तरफ ये ईस्ट पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो अब इंडिया के लिए ये समझ में आ रहा था कि जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल होने जा रही है, क्योंकि number of migrated people was increasing day by day and it was becoming really difficult for India to manage all these migrated people। ठीक है, तो क्या हुआ, ऐसे में फिर इंडिया जो था, इंडिया ने बांग्लादेश के कॉज को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। इंडिया ने हर तरह का सपोर्ट किया, मॉरल सपोर्ट किया, फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया। और इसी में इंडिया पर एयर अटैक, एयर स्ट्राइक स्टार्ट हो जाता है और पाकिस्तान के साथ एक फुल स्केल वॉर जो है वो 1971 के दिसंबर में स्टार्ट हो जाती है। एंड इन दिस वॉर वी वर द victorious on 16th of December 1971 Bangladesh originated as an independent country। तो ये सिचुएशन था, दिसंबर में वॉर हुआ और हमने ट्रीटी कब की, हमने ट्रीटी की अगस्त 1971 में। तो ये सिचुएशन था जिसमें कि हमारी ट्रीटी होती है सोवियत यूनियन के साथ। ऐसे में अगर हम ट्रीटी नहीं करते, जबकि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी जिसमें कि ये समझ में आ रहा था कि कभी भी वॉर ब्रेकआउट हो सकता है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका का जो नेक्सस था वो बन चुका था। तो ऐसे में अपने सिक्योरिटी के लिए हमें ये ट्रीटी करनी पड़ी सोवियत यूनियन के साथ। एंड मोर ओवर जो हमने ट्रीटी सोवियत यूनियन के साथ किया उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि हमने सोवियत यूनियन के साथ ट्रीटी कर लिया तो नाउ वी आर नॉट एबल टू do any kind of treaty with US. It is not written, because as we have discussed in the previous classes, one of the most important feature of military alliances is that it is written in the treaty very clearly that if you are a part of this treaty, if you are a part of Western alliance, then you cannot have any treaty. You cannot go in any treaty with the ईस्टर्न अलायंस। अगर आप इस वेस्टर्न अलायंस से जुड़ गए हैं तो आप ईस्टर्न अलायंस से नहीं जुड़ सकते हैं, अगर आप वेस्टर्न अलायंस से जुड़ गए हैं तो आप ईस्टर्न अलायंस से नहीं जुड़ सकते, ईस्टर्न से जुड़ गए हैं तो वेस्टर्न से नहीं जुड़ सकते। तो ऐसी कोई भी बात जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे जो ट्रीटी हुई सोवियत यूनियन के साथ, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ था। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो हमारी ट्रीटी थी उससे हमारे नॉन अलाइनमेंट के कैरेक्टर पे किसी भी तरह का कोई
वो नहीं आता है कि हम नॉन अलाइन नहीं रह गए। ये दिस इज ओनली अ क्रिटिसिज्म एंड वी आर देयर टू डिफेंड इट। ये गलत है ऐसा कहना कि हम नॉन अलाइन नहीं रहे बिकॉज ऑफ दिस ट्रीटी। वी वर स्टिल नॉन अलाइन कंट्री। तो ये सिचुएशन को समझना और उसमें जो क्लॉजेस थे उसको समझना हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से हम ये इसके दो क्रिटिसिज्म्स को हमने देखा। अब हमारे सामने एक दूसरा जो कि लास्ट सेगमेंट है हमारे इस पूरे बुक इस पूरे चैप्टर का, एंड वो है रेलेवेंस ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट। आज के समय में नॉन अलाइन मूवमेंट की क्या रेलेवेंस रहेंगे, ये वी विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट क्लास।